very happy to see you online. Take care of your health. Anyhow, today we will be discussing the ambit and scope of Article 12. Before I proceed with the discussion, what is important to know as to why should we know the meaning of state? Okay, it is for 2-3 reasons. Main reason is that we say that Constitution guarantees us the fundamental rights. Now, most of the fundamental rights are enforceable against the state. Right? Now, if my right is violated or infringed, and I have to knock the door of the court, that state should be ordered or directed to do what they are supposed to do and what they should do. तो मेरे को पहले कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो राइट वायलेट हुआ है वो स्टेट ने किया है. ठीक है. अब अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो एक नेगेटिव जो ड्यूटीज है वो इम्पोज की कॉन्स्टिट्यूशन ने कि यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट और यू विल नॉट डिप्राइव ऑफ समबडीज लाइफ एंड लिबर्टीज. So therefore we say that this is a negative duty imposed upon the state. Fine. Why so? That is negative one, and the positive one is DPSP. The state is required to do so. Fine. Now ultimately the interest of the citizens should be protected and rule of law that should prevail. Fine. तो अगर आज स्टेट आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, आपके पास एक ही फोरम है जहां जाके आप बात कर सकते हो. ठीक है. और अब क्वेश्चन ये यहाँ आता है कि स्टेट क्या है. देखो, वी हैविंग बीन इन प्रैक्टिस, हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, इफ समबडी इज कमिंग एंड सेइंग दैट इस एजेंसी ने, इस कॉर्पोरेशन ने, इस कंपनी ने हमारे साथ में ये गलत किया, तो आप रिट फाइल कर दो. समझ रहे हो. नाउ रिट इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द स्टेट. So we need to see first whether that company or the corporation or the agency which has violated the right of an aggrieved person, whether that falls under the definition of state or not. So therefore, in order to enforce the fundamental right in a, you could say, productive way, you need to know first as to whether the actions could be taken or not taken. If the agency which has violated the right falls within the definition of state, then action lie. Otherwise, the action of it would not lie. More especially, 32 article you cannot invoke. Whereas scope of article 226 is bit broader, wider than 32. Why I'm saying so? Because वहाँ पे अगर आपका legal right भी infringe हुआ है, still you can go to the court of law. I mean, high court you can approach. बट यहाँ अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है, ओनली देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. अंडरस्टैंड. ठीक है. तो आर्टिकल 226 होल्ड्स अ वाइडर स्कोप देन द आर्टिकल 32 because only we can move to the Supreme Court only in case of violation of fundamental right, not otherwise. बट यहाँ पे हम क्या है कि अगर लीगल राइट भी वायलेट हुआ तो हम जा सकते हैं. ठीक है. पहला तो ये डिफरेंस. अब स्कोप के हम डेफिनेशन पे आते हैं. सबसे पहले एक एक वर्ड पे फोकस करना. द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस concerning the fundamental rights. Hence article 12 has defined the term for the purpose of part 3. First and foremost thing which you have to remember, the definition of state which has been provided under article 12 is only in context of fundamental right, part 3. चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ अभी. State and government, one and the same thing or two different things? Parliament and government? State and parliament? अब डेफिनेशन पे आओ जो सामने लिखी है ध्यान से. सबसे पहले देखो, state includes, the word includes carries lot of importance. इसका मतलब है स्टेट जो है
वो एक बड़ा ऑर्गन है, समझ रहे हो? उसके नीचे ये सब उसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया समझ में आता है, अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है फिर? इट डेफिनेशन सेज द स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। नाउ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे एक लॉ मेकिंग बॉडी की बात हो रही है, पार्लियामेंट की एट यूनियन लेवल, और दूसरी बात हो रही है एग्जीक्यूटिव। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। तो यहाँ प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ उन्होंने खाली प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा? ऐसा लिख देते प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्यों लिखा? ओके, और government means president is not directly elected by people, तो government में आपके जो direct representatives of people हैं वो भी include होंगे। therefore the word president is not mentioned here. They mention government and parliament. Fine. Now government includes president as well as the prime minister and the council of ministers too. Why so? Why so? देखो मैं क्या बोलता हूं, जब तक आपका वाई सेटिस्फाई ना होना आगे मत बढ़ो। आपका वाई सेटिस्फाई होना चाहिए कि यार प्रेसिडेंट की जगह यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट लिखा, और गवर्नमेंट में तो मिनिस्टर्स भी आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ऐसा क्यों? He himself is a part and parcel of the government. Fine. When he says my government, अब मतलब समझो इसका, बहुत डीप मतलब है। देखो लॉ समझना इतना आसान नहीं है। Therefore it is, you know, it has a lot of intricacies and it requires, I mean, अब गवर्नमेंट में आपके दो तरह के एग्जीक्यूटिव हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? तो ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। सो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपका ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, वो सब इंक्लूडेड है इसमें। जानते थे आज से पहले? कभी पढ़ा ही नहीं इस एंगल से, समझ रहे हो? इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन नाउ। इट स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट। अगर मुझे आज पुलिस के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है कि दे आर नॉट सर अबाइडिंग द लॉ एंड दे आर नॉट हियरिंग मी और दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू नो, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, आई कैन टेक एक्शन बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। समझ रहे हो? क्योंकि वो गवर्नमेंट है, स्टेट है, मैं ले सकता हूँ एक्शन। अब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ फर्क ये है कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज की बात हो रही है। सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया है आपका अदर अथॉरिटीज, जो समझ नहीं आता कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लाई करता है कि नहीं करता। लोकल अथॉरिटी में आप मोटे तौर पे मान लो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, आपका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, बॉडीज, ये वो, पंचायत, विलेज पंचायत आर आल्सो स्टेट। अब अगर आपने डेफिनेशन को इस तरीके से समझ लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। वेदर एक्शन वुड लाई और नॉट लाई, यू कैन मेक इट लाइक दिस, फाइन। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू पेन डाउन, एंड इसको हमेशा के लिए अपने माइंड में रखना है, सो दैट आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको वहां। ठीक है, चलिए अब आप एक लाइन लिख लीजिए, आपको हेल्प करेगी वो। स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू दी State is not limited to the executive branch. State is not limited to the executive branch of the government, but extend to legislative and administrative authorities, as well as other entities
एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। अब मैं आपको जब अदर अथॉरिटी करवाता हूँ ना, तो आप देखना इसका जो ये लाइन लास्ट लिखवा रहा हूँ मैं, अदर एंटिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। तो आपने तीनों ऑर्गन तो पहले इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है, और फिर आपने बोल दिया कि ऐसी एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो भी इसके एम्बिट में आती है स्टेट की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ, यहां लाना चाहता हूं मैं आपको, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आई मीन adjudge in just a second whether action would lie or not lie, whether this body falls under the ambit of article 12 or not, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रिमेन कंफ्यूज समटाइम, यू नो, so many tests have been laid on in a different judgments, one judgment says so, another judgment says so, ठीक है। द cumulative हम देखेंगे उसमें हुआ क्या अल्टीमेटली, और किसको हम लोग आज ये मानते हैं कि स्टेट है और किसको हम ये मानते हैं कि स्टेट नहीं है, उसका कम्युनिटिव इफेक्ट क्या है उन जजमेंट्स का, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो अब मैं आपको चीज बताऊं, वाई, मैं शुरू में बोला कि वाई, आई मीन फंडामेंटल राइट आर सो फंडामेंटल, always kept on the highest pedestal, should not be allowed to be violated at any cost. When Supreme Court is the guardian, Constitution is the guardian, ठीक है, और their right are so sacred, ठीक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि अब अगर आपका राइट तो है, ठीक है, वायलेट हो गया, मान लिया, ठीक है, अब जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है, most of the fundamental rights are enforceable against the state only, but अभी मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊंगा जिसमें कोर्ट ने इवन प्राइवेट जो नॉन अदर स्टेट्स बॉडी हैं उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया। अब some of the fundamental right, if I say that somebody is like discriminating you and not allowing you to enter into his shop or restaurant or a hotel, आर्टिकल 15 की वायलेशन है, अब वो है तो प्राइवेट पर्सन, तो क्या उसके अगेंस्ट में रेट लाई करती है? द बिग क्वेश्चन इज नो, बिकॉज स्टेट के अगेंस्ट में लाई करता है। बट यहाँ अब इवॉल्वमेंट देखो, लॉ जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली एक इवॉल्वमेंट प्रोसेस है, इसीलिए देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस। आई लेट यू नो द नेम ऑफ द जजमेंट 2023 की है, जिसमें इवन ये भी बोला कि अगर 19 और 21 की वायलेशन भी है तब भी आप एक्शन जो है उसके अगेंस्ट में ले सकते हो अगर वो प्राइवेट पर्सन है, नॉट अ स्टेट, स्टिल एक्शन लाई। अब अनटचेबिलिटी है 17, अब नोबडी कैन, वो तो पनिशेबल है रादर, ठीक है, बट इफ अ प्राइवेट पर्सन इज लाइक यू नो एक्सरसाइजिंग सच अ प्रैक्टिस अगेंस्ट यू, देन यू कैन रियली गो एंड टेक एक्शन, ठीक है। तो अब धारणा धीरे धीरे जैसे जैसे लॉ एक डायनामिक चीज है, इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, सोसाइटी में एडवांसमेंट हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि लॉ भी चेंज हो रहा है, नोशंस भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कोर्ट्स ने हमेशा किसी टाइम पे कुछ वर्डिक्ट दिया, अपने वर्डिक्ट को नलीफाई करके नया जजमेंट दिया, ठीक है। बिगेस्ट एग्जांपल आपके पास में एडीएम जबलपुर है, ठीक है, बहुत सारी हैं, गोलकनाथ से शुरू हुई कंट्रोवर्सी, केशवानंद भारती तक गई, whether the fundamental right could be amended or not amended, क्वेश्चन ये था, whether the preamble is an integral part of constitution or not, क्वेश्चन ये था। Now it took time to decide, बेरुवरी में बोला नहीं है, ठीक है, और केशवानंदा में बोल दिया कि है, अब एलआईसी में बोल दिया इंटीग्रल पार्ट है प्रेम्बल, समझ रहे हो। तो ऐसे है लॉ, ऐसे इवॉल्व होता है, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया अप्रोच नहीं, बट वंस यूर आई मीन द बेसिक्स आर क्लियर, देन यू कैन अप्लाई योर माइंड एंड आई मीन एक्सप्रेस, आपकी रीजनिंग अगर अच्छी है हैं, और देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, हेयर एंड देयर वुड हार्डली मैटर्स। बट जो अभी तक का लॉ है और जो हमारे पास में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने नया एनंसेट किया वो आपके पास में एज इट इज वर्डेड होना चाहिए, उसमें अपनी धारा अगर ओपिनियन पूछी गई है तो दे सकते हो, ठीक है, बट अगर सिर्फ लॉ पूछा गया तो फिर आपने वही कोट करना है जो, ठीक है, ओके।
आपका एक अकाउंट एसबीआई में है और दूसरा अकाउंट आईसीआईसी में है, मान लो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, some malpractice by some officials and it was mishandled or misused, whatever. Now you want to take action. Can you take action against the private bank by way of a writ? That too straight in Supreme Court. अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको। पीडी शिव दसानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस है 1951 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि प्राइवेट बैंक जो है, रेमेडी कैन नॉट बी सॉट अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट द प्राइवेट बैंक। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 द रिट कैन नॉट बी फाइल्ड। ठीक है, ये हुआ। अब 2023 का लेटेस्ट केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The Supreme Court held that fundamental right guarantee under Article 19 and 21 respectively can be enforced against the state as well as non-state. मतलब कितनी लेटेस्ट चीज है ये। मतलब क्वेश्चन आ गया आपको यूपीएससी में कि whether action lies against the non-state actors for violation of fundamental right. Name of the judgment is Kaushal Kishore versus State of UP 2023. FR guaranteed under Article 19 and 21. Freedoms की बात करते हैं ना हम, right to life and liberty 21 and right to freedom 19. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक। मान लो somebody has confined you and your whereabouts are not known. For that, writ of habeas corpus lie. Usually we file against the state, but now it's the private person who has put you in a confinement. Any public spirited person or your known one, friend or family member would come to the court and file the writ of habeas corpus. अब वायलेशन किसकी है वो? राइट टू लाइफ की, लिबर्टी की 21 की वायलेशन है। हैबियस कॉर्पस आप फाइल कर रहे हो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में। दैट इज द रीजनिंग। तो रीजनिंग आपने यहां से डेवलप करनी है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला होगा। रीजन समझो। सी फ्रीडम्स आर आई मीन सो वैल्यूएबल टू अस दैट शुड नॉट बी curtailed or limitized without due process of law or without procedure established by law. If it is being done by the private person, he is also liable. Okay? Therefore, the action would lie, writ would lie. अगर आपसे कोई पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन अभी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा? स्टेट लेजिस्लेचर की कोई पूछेगा तो बोलोगे गवर्नर एंड काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और अगर आपके ऐसे गवर्नमेंट की पूछेगा तो ओके, एग्जेक्टिव क्या पूछेगा तो एग्जेक्टिव कौन है फिर क्या बताओगे? एंड द पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉ, फाइन, दे आर एग्जेक्टिव, and those who makes the law, they are legislatures. Right? And government का law making 1, administrative 2, law enforcement 3, ठीक है, एंड अदर ब्रांचेस टू, जैसे हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की, अदर ब्रांचेस टू। लॉ मेकिंग में तो सर सारा लेजिस्लेचर नहीं आ जाता, तो हमें यहाँ लॉ मेकिंग के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। किसमें? लॉ मेकिंग वाले नहीं, दे आर टू इम्प्लीमेंट, दैट इज एग्जेक्टिव बॉडी। इसकी आप बात कर रहे हो। एक जो आपकी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव बॉडी है वो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट में आपने बोला लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव लॉ इम्प्लीमेंट। इस कंफ्यूजन को दूर करो। पार्लियामेंट में तो सारे आ गए ना,
ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बोला एग्जेक्टिव आर ऑफ टू टाइप, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपकी वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं, समझ रहे हो? ये डिफरेंस है बस, विच आई वांट टू पॉइंट आउट टुडे। मुझे भी आप लोगों से बात करते क्लैरिटी मिलती है, हम भी कहाँ इतना बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लोकल अथॉरिटी का भी कोई डाउट नहीं है आई सपोज। ठीक है, अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो अदर अथॉरिटीज में आती है कि कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, तो आप इसमें 2-3 जजमेंट्स लिखेंगे, बहुत बहुत जरूरी हैं वो। अच्छा, लोकल अथॉरिटी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक टेस्ट लेट डाउन किया था, मोहम्मद यासिन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी जजमेंट है एक। उसमें उन्होंने ये बोला था कि सेपरेट लीगल एक कॉर्पोरेट बॉडी हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो। देखो मैं आपको बताऊँ, जो गवर्नमेंट है अभी नाउ इट इज़ टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। अब अकेली गवर्नमेंट सक्षम नहीं है अपने फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, तो उसको सम टाइम क्या होता है दूसरी एजेंसीज का सपोर्ट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल LIC की एग्जांपल हो आप, ठीक है, आप एग्जांपल हो FCI की एग्जांपल हो, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह की एजेंसीज की सपोर्ट लेनी पड़ती है, इधर फॉर द कमर्शियल पर्पस और अदरवाइज। फाइन, बिकॉज दे आर टू, उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं दैट इज फॉर द वेलबींग ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, बट दूसरे ऑर्गन्स को अपने साथ एसोसिएट करना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या वो जो ऑर्गन्स एजेंसीज इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, क्या वो स्टेट का पार्ट एंड पार्सल है या नहीं है। ठीक है, पहला टेस्ट वो अगर लोकल अथॉरिटी में आएंगी या अदर अथॉरिटीज में आएंगी, पहले तो हमने ये डिफरेंशिएट करना है। तो जो लोकल अथॉरिटी का टेस्ट है वो इस जजमेंट में दिया उन्होंने, मोहम्मद यासिन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। आप लिख लो जजमेंट का नाम, बट आप देख लेना बाद में कि उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए, उनका एक फंक्शन का जो एरिया है दैट शुड बी डिफाइंड, मतलब इस तरह की चीजें थी उसमें। ठीक है, अब हम आते हैं रियल क्वेश्चन पे। पहला जो आप बोलते हो एक प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन प्रपाउंड हुई, वो केस का नाम लिखो, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ एजेस्डम जनरिस, एजेस्डम जनरिस, इसका मतलब होता है ऑफ द लाइक नेचर। एनी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी इफ इट परफॉर्मिंग द फंक्शन एट पार विद द गवर्नमेंट, तो टेस्ट पहला ये लेट डाउन हुआ कि उसको हम बोलेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन में आती है। कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, एजेंसी है, इफ इट इज परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन एज टू द गवर्नमेंट देन इट वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये किसमें हेल्ड हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई में। तो इनका कहने का मतलब था कि वो अथॉरिटीज हैं, अदर अथॉरिटीज हैं और स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अब ये मुझे बताओ कि बड़ा लिबरल व्यू लिया कोर्ट ने ये बोल के, या एक रिस्ट्रिक्टिव व्यू है कि खाली वो एजेंसीज को हम शामिल करेंगे उसमें जो स्टेट लाइक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इज इट ए रिस्ट्रिक्टिव व्यू और ए लिबरल व्यू? अब फर्दर जजमेंट का नाम लिखो आप, उज्जमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, UJJAMMABAI। Now, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि द व्यू टेकन वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई वाज अ रिस्ट्रिक्टिव वन। अब खाली ऐसे ही एजेंसी को नहीं आप बोल सकते कि ये एजेंसी स्टेट है या नहीं है। ठीक है, तो देयर हैज टू सम अदर फैक्टर्स दो शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स थे वो डिसाइड हुआ। आपका केस का नाम लिखो, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, लैंडमार्क केस। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात सुनना सुप्रिया, आप जब पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप उसमें पढ़ रहे हो कि यार कुछ एक अथॉरिटीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कुछ एक अथॉरिटीज हैं स्टैट्यूटरी हैं। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैट्यूटरी है?
स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी है फिर? कौन कौन सी एग्जाम्पल दो। और सिंपल वर्ड याद रखना, एनी अथॉरिटी विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वे ऑफ स्टैच्यूट enactment, that is statutory body। समझ रहे हो? तो यहाँ जो टेस्ट लेस डाउन किया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में, उन्होंने बोला अदर अथॉरिटीज वुड इंक्लूड authorities created by the constitution or statute। यूपीएससी क्या है? बुक में है इसलिए फिर ये भी फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बुक में है आपके, दिस इज आल्सो फैक्ट। इसके लिए दूसरा स्टैट्यूट चाहिए आपको जो बुक में नहीं है, ठीक है? स्टैट्यूट मींस एक्ट, डिफरेंट एक्ट के थ्रू जो इनेक्टमेंट हुई है उन बॉडीज की, ठीक है? तो वो बॉडी है। तो इसमें क्या, इसमें टेस्ट लेट डाउन कर दिया कि आपका जिसको भी हमने लॉ की पावर कन्फर की है, और या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? अब इसमें इसकी जरूरत क्या थी? मान लो ऑल स्टैट्यूटरी बॉडी मे नॉट बी परफॉर्मिंग द गवर्नमेंट फंक्शंस। आपको शांताबाई ने बोला कि गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, पर ये जरूरी थोड़ी है कि हर बॉडी जो गवर्नमेंट जो स्टैट्यूट से बनी है वो गवर्नमेंट के फंक्शन ही परफॉर्म कर रही है। बट अगर वो स्टैट्यूट से क्रिएट हुई है तो वो अदर अथॉरिटीज में आ गई डेफिनेशन में, ठीक है? इसमें अगर मैं केस के आपको फैक्ट बताऊं एंड बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आपके मतलब के नहीं है वो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। इसमें केस के फैक्ट ही बता देता हूँ आपको। इसमें मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना, आप 4 लोगों ने मिलकर बना दिया। आपने गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया कि सर वी वुड बी पुटिंग दी ट्रांसफार्मर्स एंड डूइंग दी थिंग्स लाइक यू नो विच आर रिक्वायर्ड। तो जब कुछ भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ये बोर्ड वाले चले गए कोर्ट में, तो क्वेश्चन वहाँ पहला ये हो गया कि आप तो बोर्ड हो, ठीक है? तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट थ्रू अ स्टैट्यूट, तो यू आर नॉट अ स्टेट, neither you are performing the government function, you are exercising merely the commercial activities। So even if you are not an existence by way of a statute, ठीक है? But still, even if you are carry forwarding the commercial activities, still you would be falling under the definition of other state। ये इतना meticulously देखना पड़ता है। पहला टेस्ट था कि आप जो है सेम फंक्शन एडिसडम जनरस। दूसरा टेस्ट आ गया कि स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसपे लॉ कन्फर हुआ, मतलब पावर मिली है जिसको, ठीक है? दूसरा टेस्ट ये था। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है? तो इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा, अब एडेड स्कूल्स हैं, ऑल्दो वो पब्लिक फंक्शन है एजुकेशन को इम्पार्ट करना, बट दे आर चार्जिंग ह्यूज फीस आल्सो। कल को उनके अगेंस्ट में रिप्लाई करती है नहीं करती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंस यू हैव बीन परफॉर्मिंग द सॉवरेन फंक्शन, गेटिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है? तो यू फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ। आपको अच्छा, कैन स्टेट डू बिजनेस और सिर्फ वेलफेयर ही करनी है उसको? कर सकती है? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं लिखा तो होना चाहिए ना, अगर स्टेट इज एम्पावर्ड एंड ऑथराइज्ड। स्टेट को तो रेवेन्यू चाहिए, कैसे करेगी काम अदरवाइज? बड़ा बड़ा लिख लो गोल करके 298। It empowers, see, constitution empowers the state to carry out the business। अब ये जितना आप ये मान लो
बैंक्स का नेशनलाइज हो जाना, एलआईसी कॉर्पोरेशन बन जाना, एयरपोर्ट अथॉरिटी का बन जाना, ये डायरेक्ट नहीं कर रही है पर इनडायरेक्टली बिजनेस तो हो रहा है ना। तो ये जो एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी हैं? स्टेट्स की तो हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। सो ऑल कॉर्पोरेशंस which are agencies of the state carrying out the trade activities by virtue of Article 298. सबसे बड़ा ये जानना जरूरी होता है कि यार ये वेदर स्टेट एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपका एक टेस्ट लेट डाउन हुआ, आप कैसे कहेंगे कि इसका स्टेट का कंट्रोल इस पे है या नहीं है। ठीक है, तो वो टेस्ट लेट डाउन हुआ आपका सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। अच्छा, मान लो अब LIC है, मैं बोलूँ ये स्टेट है या नहीं है, तो आप सबसे पहले देखोगे यार शेयर कैपिटल किसका है, कंट्रोल किसका है, डोमिनेंस किसकी है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती है, ये जो पैसा रिसोर्स कर रही है जनता से बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो एक्चुअली री इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास 2-3 चीजें हैं इसमें, शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड, एक्चुअली कंट्रोल किसका है। अच्छा, कुछ एक ऐसी एजेंसी है जिसको कंप्लीट मोनोपोली दी हुई है। ठीक है, और दूसरी कोई एजेंसी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। अभी तो चलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है, बट ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ले लो आप, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं, तो फंक्शंस देखने हैं कौन से परफॉर्म कर रही है, किस नेचर के फंक्शंस हैं, एड आ रही है नहीं आ रही है, कंट्रोल किसका है, तो अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने होल्ड किया, आपका जितनी, मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं अभी। फॉर एग्जांपल आप ले लो, क्वेश्चन यही आया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो वेदर इट इज अ स्टेट और नॉट। RD शेट्टी का केस उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें बोला था कि नहीं ये स्टेट है। अब BCSC का केस आ गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज बाय वे ऑफ अ सोसाइटी, तमिलनाडु से रजिस्टर्ड है वो। तो क्वेश्चन ये आया, जी टेलीफिल्म का केस है, तो उसमें ये आया कि वेदर इट इज अ स्टेट और नॉट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज नॉट अ स्टेट। रीजन कि हमारा जो एक व्यापक कंट्रोल उस पर चाहिए वो नहीं है, एड हमसे वो ले नहीं रहे हैं, अपना पैसा फ्लोट करते हैं बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो BCSC में ये होल्ड हुआ नॉट अ स्टेट। रेस्ट अदर जो थे उनमें सब में ये होल्ड हुआ कि स्टेट है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट उसमें है। अच्छा, वेदर NCERT इज अ स्टेट और नॉट, इसका आप सिलेबस पढ़ रहे हो अभी, इट्स नॉट अ स्टेट। टेस्ट देखना है आपने, सॉवरन फंक्शन, लाइक फंक्शन, मोनोपोली, कंट्रोल, ये सब तो ओके है चीजें, ठीक है, मेन आप लिख लो इसमें अभी। अच्छा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करूं तो वो स्टेट है, ONGC की बात करूं तो वो स्टेट है, IOC की बात करूं तो वो स्टेट है, ये कॉर्पोरेशन स्टेट है, बट NCERT इज नॉट अ स्टेट। रीजन लिखो उसका क्या है, नीदर इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट नॉर इट इज अंडर द परवेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये आप ऐसा मान के चलो कि स्टेट ने विंग बनाया जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, करिकुलम कैसा हो, स्टैंडर्ड कैसे हो, वो सब, बट इनको ना तो सब्सटेंशियली कोई एड मिल रही है गवर्नमेंट से, ना ही गवर्नमेंट का इनके ऊपर में कंट्रोल है। तो ये केस में हेल्ड हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन रीजनिंग। फंक्शन एट पार विद स्टेट, वो रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया था ना उसमें, कि खाली वही नहीं देखना है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। एक केस और लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इस एम्बिट से, अजय हासिया वर्सेस अब्दुल मजीद। जो मैंने आपसे यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर यहाँ है। मजे की बात यह है कि मान लो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तो इसमें कभी कभी डिसेंट व्यू भी आता है, पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो 4/1 भी है तो मेजोरिटी वी वुड प्रिवेल, ठीक है ना।
इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये अजय हासिया था, he went for an interview and he was asked certain questions which he found that awkward question पूछ लिए, then इसने बोला मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हो गया, ठीक है, इसके रेजिडेंस से पेरेंटिंग को लेके कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये आ गया कोर्ट में। तो क्वेश्चन वहाँ ये आया कि whether the action lies against the state against the university or not, that university was constituted under the Jammu and Kashmir Registration of Society Act 1898, तो सोसाइटी के अंदर में उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली इसमें हेल्ड किया कि सोसाइटी विच एडमिनिस्टर द कॉलेज वाज स्टेट विद इन द आर्टिकल 12। तो इन्होंने बोला कि वो सोसाइटी जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, अगर उनको यूजीसी से ग्रांट मिल रहा है, उनके पास एफिलिएशन एक्रेडिटेशन है, उनके ऊपर में चेक है, तो वो स्टेट है। मगर अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है मतलब इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है, और उसके ऊपर में कोई एड नहीं मिल रहा, कोई ग्रांट नहीं मिल रहा, अब क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि क्या वो स्टेट होगी क्या नहीं होगी। तो वहाँ पे आप ये फिलहाल तो जजमेंट ये दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब पर्पस देखना फॉर विच पर्पस द कॉलेज हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सेटअप, ठीक है। बीसीसीआई वाले में बोला था कि स्टेट नहीं है, ठीक है, वो केस का नाम है जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 का जजमेंट है वो। अब एक मेजर क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। जुडिशरी स्टेट है विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 और नॉट? गवर्नमेंट का देखना, पहले देखो आप स्टेट क्या है, फिर देखो गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, फिर देखो आप पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, वहां कहीं आती है जुडिशरी? Okay, if your rights are violated, where would you go? Now, for the enforcement of the fundamental right, you are knocking the door of, and if the Supreme Court is here only, then where would you go? State will take action against the state. State will hear the matter against the state. Therefore, the judiciary has been put away from the ambit of this when it is performing judicial functions only. Question is, why the judiciary was kept outside the ambit of Article 12? For the reason that it is the guardian, it is the custodian, and it is to enforce the right. ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ये है कि जब अब वो जजमेंट दे रहे हो, there is a scope of commission of error. You can commit an error because human is an error. मतलब human can commit error. Fine. अगर आपने commit कर दिया तो आपके पास में क्या provision है? You can go for review. You can go for appeal in the higher court. Revision you can file. और in Supreme Court, in case वहाँ आपको लगता है कि outrightly गलती हो गई है while rendering the judgment, then you can file the curity petition there. समझ रहे हो? वहाँ curity petition आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो है अगर while rendering the judgment आपका कोई fundamental right violate हुआ, then you cannot go anywhere. You don't have any forum. But when the judiciary is performing administrative function and violates any of the fundamental right, then you can go. रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अगर कोई पोस्ट निकाले और आपको लगे कि वहाँ गलत हो गया है, तो आप रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को पार्टी बना सकते हो।
तो आप इसको दो तरीके से बांट सकते हो, कोर्ट व्हेन परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शन and when performing the non-judicial function. Against, while performing a non-judicial, if it violates any of the fundamental right, then it could be challenged. Now I'll take one last question जो important है और आपको इसमें से पूछा भी जा सकता है. मैं आपसे पूछता हूँ अभी. जो हमने शुरू में डिस्कस किया उसको नोट कर लो क्वेश्चन को, बिकॉज मुझे लगता है वन वे और दी अदर इट कुड बी आस्क्ड. देखो, डज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, डज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, डज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 define the purpose, define the state for the purpose of, define the state for the purpose of enforcement of fundamental right, or it applies to the other article of the COI, Constitution of India, or it applies to the other article of Constitution of India. The one line answer, the definition provided in under Article 12 cannot be liberally interpreted or extended to other articles. Got it? तो पहली लाइन ही हमने ये पढ़ी थी ना, कहाँ पढ़ी थी? ये पढ़ा था. यस, आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है. सेशन कंक्लूडेड. कल 13 पे बात करेंगे.